people, welcome to Prep Elevate. I welcome all of you to the 30-day mini RC series, which I hope you have been following consistently and you're finding it to be effective. Today we are at day 16 and we'll discuss corporate ethics, balancing profit and social responsibility. Again, a very contemporary topic. काफ़ी बातें होती है इस बारे में कि हम अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे ध्यान दें या जो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पर भी इन्वेस्ट करें. तो देखते हैं क्या डिलेमा है. The corporate ethos is ethics, has long been tethered to shareholder primacy. Tethered is tied. अगर आप नॉर्मली tethered का मतलब समझना चाहते हैं ना, तो एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है. लेट्स से when you tie up a horse, right, and then there is a rope, so it is said that the horse is tethered to the nail. ठीक है. आप सबने हाई स्कूल मैथ का एक ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन था कि आप एक घोड़े को बांध देते हैं और वो कितना एरिया ग्रेज कर सकता है. अगर आपको थोड़ा बहुत भी मेंस्ट्रुएशन याद होगा तो टेथर्ड वहीं से आता है. सो इसका मतलब है कि कॉर्पोरेट एथिक्स हैज लॉन्ग बीन टाइड, ठीक है, टाइड टू और डिपेंडेंट अपॉन शेयर होल्डर प्राइमेसी. मतलब शेयर होल्डर को एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस देना है, उनके नीड्स को, उनके प्रॉफिट्स को, उनके विशेस को, विम्स एंड फैंसीज को, जो भी आप बोल लो. काफी टाइम तक यही चला आ रहा था कि जो भी उनका ख्वाहिश है उसको पूरा करना है. अ डॉक्ट्राइन enshrining profit maximization as an inviolable fiduciary obligation. Now this promoted profit maximization as an inviolable. That means something that cannot be violated. You have to fulfill it no matter what. And what is fiduciary obligation? Fiduciary obligation is when you are bound either ethically or legally to create that kind of atmosphere where you have to like take into consideration the well-being of your the people that you are dealing with. ठीक है. जब आप fiduciary obligation आपका होता है that you are legally or ethically bound to take care of the well-being of the people you are associated with. तो इस केस में क्या है कि शेयर होल्डर का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, उसके विशेष को पूरा करना, जो भी उनके डायरेक्शंस को पूरा करना, दिस वाज एन इनवायलेबल, मतलब समथिंग दैट कैन नॉट बी वायलेटेड, इनवायलेबल फिड्यूशरी ऑब्लिगेशन. ठीक है. तो ये ऑब्लिगेशन था कि शेयर होल्डर का जो भी ख्वाहिश है उसको पूरा करना. ठीक है. येट द एसेंडेंसी इज, असेंडिंग क्या होता है, छोटे से बड़ा जाना. ठीक है. असेंडिंग ऑर्डर. तो जैसे जैसे एसेंडेंसी बढ़ा मतलब आगे आया, किसका, कौन आगे आया, स्टेकहोल्डर कैपिटलिज्म underscores a broader paradigm. Paradigm is an idea or a structure or a framework. So पहले पूरा corporate ethos that would revolve around only the the shareholders. ठीक है. उसके बाद आया stakeholders. That means anybody who has or who is a part of the organization. ठीक है. No matter what their standing is. तो सारे लोगों के नीड्स पे हमें ध्यान देना पड़ेगा, एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव लेना है हम. ठीक है. One that mandates corporations to integrate social, environmental and ethical imperatives into their strategic calculus. So now we have stepped into a time zone wherein not only the shareholders' interests will be taken care of, but there is going to be a broader responsibility that you have to take care of the social, environmental and ethical imperatives, right? So that will also be a part of your strategy, strategy when you build company building strategy. So ये भी एक imperative part होगा. ठीक है. While proponents कौन होते हैं, supporters, argue that ethical governance engenders is gives rise to long-term economic resilience. Skeptics, who is a skeptic, who does not trust anything easily, people who are doubtful. So skeptics contend that prioritizing social responsibility may encumber is create an obstacle to financial agility, diluting competitive edge. अभी दो kinds of parties हमें मिली. जो इस मैंडेट को सपोर्ट करते हैं, प्रोपोनेंट्स, सपोर्टर्स, दे फील कि अगर आप एथिकल कामों में इन्वेस्ट करोगे, आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट का भी ख्याल रखोगे, लॉन्ग टर्म में
वो आपको इकोनॉमिक रेजिलियंस देगा। मे बी इनिशियली वो आपसे एक इनपुट मांग रहा है, बट लॉन्ग टर्म में इट इज गोइंग टू गिव इट गिव योर रिटर्न्स। बट स्केप्टिक्स, पीपल हु आर डाउटफुल, हु ओनली फील दैट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन शुड बी की, बिकॉज आपको सस्टेन भी तो करना है। आप अगर आपके कंपनी का एक मेजर चंक आप कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में लगा रहे हो, बट उतनी अर्निंग आपकी नहीं है, रिटर्न आपकी नहीं है, तो कंपनी डाइल्यूट हो जाएगी। तो उनका मानना है कि अगर हम प्रायोरिटाइज करेंगे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को, तो वो एनकम्बर करेगा या एक ऑब्स्टेकल क्रिएट करेगा financial agility में। We are not going to be financially that stable, and ultimately it is going to dilute the financial the competitive edge। ठीक है। corporate social responsibility और CSR initiatives ostensibly positioned as moral imperatives। ostensibly क्या होता है? जब आप प्रमोट करते हो कि ओके दिस इज हाउ इट इज, बट एक्चुअली वो होता नहीं है। सो बेसिकली अ फेक कॉज, ठीक है, बट उसको प्रोपगेट ऐसा किया जाता है। लेट्स से देयर इज एन एम्प्लॉय एंड दैट एम्प्लॉय इज नॉट वेरी सिंसियर, सो एवरी टाइम ही वांट्स अ ब्रेक फ्रॉम ऑफिस और छुट्टी चाहिए होती है, he is going to come up with excuses, and excuses which where let's say some near and dear ones need him, some family emergency, something of this sort। so ostensibly क्या बोलेंगे हम लोग उसको कि वो excuse create करे। he is pretending that he will not be present at office because he has to attend to some family emergency, but reality वो नहीं है। so ostensibly is वो propagate उस तरह से की जाती है कि okay this is the reality, but actually वो होता नहीं है। ठीक है, काइंड ऑफ अ फेक प्रोपेगेंडा यू कैन से लेमैन टर्म्स में। ठीक है, सो ऐसा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को ना CSR जो इनिशिएटिव्स लेते हैं, इट इज ऑस्टेंसिबली मतलब ऐसा दिखाया जाता है कि ये एक मॉरल इंपेरेटिव है, देयर इज अ लॉट ऑफ राइचियसनेस एंड वैल्यूज एसोसिएटेड विद इट। frequently straddle the line। straddle is जब आप carefully balance करते हो between two sides, तो कभी इधर तो कभी उधर। so they frequently straddle the line between genuine ethical commitment and calculated optics। ऐसा बोलते हैं ना, बहुत सारी अच्छी चीजें जो अच्छी दिखती है वो अच्छी हो नहीं रही है, इंटेंशन शायद अच्छा नहीं है, तो काफी बार ऐसा होता है जो CSR इनिशिएटिव्स होते हैं वो एक आई वॉश होता है, दैट सी दिस इज हाउ वी आर डूइंग इट, एंड एक पब्लिसिटी हो जाती है कि ओके दिस कंपनी इन्वेस्ट अ लॉट इन CSR, बट एक्चुअली एजेंडा वो होता नहीं है। प्रॉब्ली प्रोपगेशन, ऑस्टेंसिबली प्रोपगेट करते हैं उस चीज को। सो दे ऑलवेज स्ट्रैडल द लाइन बिटवीन एक्चुअल एथिकल कमिटमेंट एंड कैलकुलेटेड ऑप्टिक्स, कि मैं किधर इन्वेस्ट करूं कि मुझे मैक्सिमम पब्लिसिटी मिले, एंड अगेन दैट इज गोइंग टू कम बैक टू मी इन टर्म्स ऑफ सेल्स एंड प्रॉफिट्स। ठीक है, द फिनोमिनन ऑफ ग्रीन वॉशिंग, देखो ये मैं बोल रही थी ग्रीन वॉशिंग, आई वॉश जो होता है, वेर इन कॉर्पोरेशंस मिसरिप्रेजेंट सस्टेनेबिलिटी एफर्ट्स टू bolster, ये याद रखना, ये सब वर्ड्स काफी यूज होते हैं। bolster is strengthen, they use all these CSR initiatives to strengthen their reputational capital। it exemplify करना, exemplifies the tension between perception and practice। तो इस तरह हमें पता लगता है कि अच्छा बहुत सारी ऐसी भी चीजें होती है जहाँ एक्चुअली उनका एजेंडा शायद उतना ट्रू नहीं होता, उतना एथिकल नहीं होता, बट दे रिप्रेजेंटेड दैट। ठीक है, तो क्या परसेप्शन है और क्या प्रैक्टिस है, उसमें एक हमें डिस्टिंक्शन देखने को मिलता है। ओके, moreover instances of exploitative labor dynamics, regulatory arbitrage and ecological degradation underscore the extent to which ethical considerations are often subordinated to short term fiscal exigencies। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको ऐसे मिल जाएंगे जहां पे शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गेन के लिए ये सारी चीजों को हम साइड कर देते हैं कि हम एनवायरनमेंट का ध्यान नहीं रख रहे, हम सोसाइटी का ध्यान नहीं रख रहे, हम सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म फिजिकल इमरजेंसीज या सिचुएशन विच नीड्स इमीडिएट अटेंशन, शॉर्ट टर्म सिचुएशंस विच नीड इमीडिएट अटेंशन, सिर्फ हमारा वहां पे फोकस है। तो बहुत सी बार ना हम एक्सप्लॉइट करते हैं लेबर डायनामिक्स को, मेकिंग पीपल वर्क एंड वर्क एंड वर्क, नॉट गिविंग देम देयर राइटफुल पे। उसके बाद रेगुलेटरी आर्बिट्रेज, रेगुलेटरी आर्बिट्रेज क्या होता है, हमने देखा होगा बहुत सी बार कंपनीज अपने हेडक्वार्टर्स एक कंट्री से दूसरे कंट्री को शिफ्ट कर देते हैं। क्यों करते हैं?
बहुत सी बार ये टैक्सेस की वजह से होता है कि हमें कम टैक्सेस लगेंगे, बहुत सी बार लॉज, यू नो एवरी कंट्री हैज पर्टिकुलर बिजनेस लॉज, तो कहीं पे थोड़े लीनियंट है तो वहां पे मैं अपना बिजनेस करने में इजी होगा, इट्स easier to get a license or a certificate in certain countries. तो जब भी आप laws को, you know, when you utilize it for your own benefits, the different laws that exist between countries, when you utilize it for your own benefit, that is known as a regulatory arbitrage. So you are using the regulations to your benefit, ठीक है, the laws that exist between countries, ठीक है. तो ये सारी चीजें होती है. Yet empirical evidence, empirical is practical, practical evidence suggests that ethically anchored enterprises cultivate consumer trust, employ allegiance, allegiance is loyalty or commitment, and investor confidence, fostering a virtuous cycle of sustained profitability and social legitimacy. इसका एक बहुत ब्यूटीफुल एग्जांपल है द टाटा ग्रुप, ठीक है. टाटा ग्रुप इज नोन to be one of those companies who takes extreme care of its employee needs, ठीक है, and it also takes care of the environmental needs. So टाटा का जहाँ पे the birth town जो है which is जमशेदपुर, right, टाटा स्टील is actually that is the birthplace, टाटा नगर. So अगर आप वहाँ पे देखोगे बहुत सारे environmental friendly initiatives Tatas ने लिए हैं. In fact, wherever they have built their companies, have taken care of it. Obviously, every company comes with its flaws. I am not saying that anybody's or any such organization is 100% perfect, but then they have created that brand value or market value where I can consider them to be an example of this CSR initiatives, ठीक है. तो ऐसा ऑथर का मानना है कि मे बी शॉर्ट टर्म में आपको इन्वेस्ट करना पड़ रहा है सीएसआर इनिशिएटिव्स में, बट इफ यू आर एक्चुअली डूइंग इट देन यू विल ऑलवेज हैव बेटर रिटर्न्स, कंज्यूमर ट्रस्ट बढ़ेगा, employee allegiance, employees their devotion, their commitment. When you're part of an organization that takes care of the collective as a whole, you feel more connected to the ethos or values of the organization, ठीक है. और इन्वेस्टर का भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, दैट इज गोइंग टू मेक दिस एंटायर साइकिल ऑफ सस्टेन्ड प्रॉफिटेबिलिटी. उसके बाद आपको सोचना नहीं पड़ेगा, वो डू और डाई नहीं आएगा, वो एक कंटिन्यूअस साइकिल बन जाएगा, ठीक है. दैट इज व्हाट द ऑथर बिलीव्स. द क्रक्स और द सेंट्रल पॉइंट ऑफ डिस्कशन, क्रक्स ऑफ मॉडर्न कॉर्पोरेट गवर्नेंस लाइज इन reconciling fiduciary responsibilities. Obviously जो financial responsibilities है और जिनका well-being आपको ensure करना है, वो उसका ध्यान आपको रखना ही पड़ेगा, ठीक है. जो financial aspects है, there's no company who can go absolutely broke and then tend to the collective, वो possible नहीं है. So there has to be a healthy balance between your fiduciary responsibilities with ethical imperatives. So you can't choose one over another. एक बहुत ही delicate beautiful सा balance बनाकर आपको चलना चाहिए, ठीक है. Ensuring that moral rectitude, moral righteousness, moral rectitude is not merely instrumentalized for financial gain but deeply embedded in corporate architecture. एक और चीज का हमें ध्यान रखना है कि आप अगर सारी अच्छी चीजें कर भी रहे हो, उसके पीछे का इंटेंशन क्या है. आर यू जस्ट यूजिंग इट एज एन इंस्ट्रूमेंट टू मैक्सिमाइज फाइनेंशियल गेन बिकॉज यू नो दैट दीज एक्टिविटीज रिफ्लेक्ट वेल ऑन द ऑडियंस, क्या आप सिर्फ उस वजह से कर रहे हो. अगर वो कर रहे हो तो हमें ये जरूरी है दैट वी हैव अ स्विच इन माइंडसेट एंड वी मेक दीज अ पार्ट ऑफ आवर डेली कल्चर. ये बस एक वन ऑफ एक्टिविटी नहीं होना चाहिए जो मुझे एनुअल बेसिस पे करना है या ईयरली बेसिस पे करना है. Taking care of the environment around us or investing in CSR activities or initiatives should be made a part of the organization on a very very regular basis, ठीक है. तो ये इसका सेंट्रल आइडिया है. दो सेंट्रल आइडियाज है एक्चुअली ना, कि आप ऑब्लिगेशंस को बैलेंस करते हुए चलो एंड मेक दीज वैल्यूज अ पार्ट ऑफ योर कॉर्पोरेट कल्चर, ठीक है. क्वेश्चंस देखते हैं. बेस्ट एनकैप्सुलेट्स the best conveys मतलब the tension, the central tension in corporate ethics as discussed in the passage. तो कॉर्पोरेट एथिक्स में सबसे बड़ा टेंशन क्या था कि मैं शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गेन को प्रायोरिटाइज करूं या लॉन्ग टर्म वाला वो सीएसआर में इन्वेस्ट करूं, राइट. द ट्रेड ऑफ बिटवीन इमीडिएट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड लॉन्ग टर्म एथिकल कंसिडरेशन, बिल्कुल यही था कि मैं किधर जाऊंगा, एक ट्रेड ऑफ है ना. तो ये था टेंशन. The absolute incompatibility of profit driven motives and social responsibility, is it absolutely incompatible कि कभी
हो ही नहीं सकता, एक साथ हो ही नहीं सकता, एक ही लेना पड़ेगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है क्या? नहीं है ना. द नेसेसिटी ऑफ प्रायोरिटाइजिंग शेयर होल्डर वैल्यू ओवर स्टेक होल्डर इंटरेस्ट, नो, ये नहीं था. द इरोजन और मतलब डिस्ट्रक्शन, स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस ड्यू टू एक्सेसिव एथिकल स्क्रूटनी, नो. ये सारे ही ऑप्शंस ना, इट्स गोइंग वन ओवर अनदर, कि कोई एक साइड को प्रायोरिटाइज करो, बट ये पूरा गेम ही ट्रेड ऑफ या बैलेंस का था. सो ये सही है. पैसेज इंप्लाइज दैट सीएसआर इनिशिएटिव्स में समटाइम्स बी, अच्छा, कभी कभी सीएसआर इनिशिएटिव्स को किस तरह से देखा जाता है? अ स्ट्रेटेजिक मैन्यूवर टू एनहांस कॉर्पोरेट इमेज. हाँ, ये पॉइंट तो था कि कभी कभी लोग करते हैं ऐसा, rather than a reflection of genuine ethical commitment. अच्छा, genuine ethical commitment नहीं है, but आई वॉश, एक ग्रीन वॉश कर रहे हैं इसको कि अच्छा, बट हम अपने इमेज को इंटैक्ट रखना चाहते हैं. एक स्ट्रेटेजिक मूव है, rather than a deeply invested intentional move, this becomes more like a strategy. ठीक है. A legally mandated obligation that companies must adhere to regardless of intent. ये कोई लीगल मैंडेट नहीं है, ऑल्दो यू नो देयर आर थिंग्स दैट कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू डू वंस दे हैव अ सर्टेन स्टैंडिंग, बट देयर इज नो सच ऑब्लिगेशन कि आपका मन हो ना आपको करना पड़ेगा, एंड ये इसके बारे में मेंशन भी नहीं है. ठीक है. सो वी आर नॉट गोइंग टू डील विद दिस. An unnecessary burden that negatively impacts long term profitability, no, actually उल्टा है, it creates a cycle of continuous profit. लास्ट लाइन में पढ़ा ना हमने. A redundant exercise, redundant is useless or repetitive or useless. As consumers rarely value ethical considerations in corporate practices, no, ऐसा नहीं है. In fact, it creates a cycle of continuous profitability. Employee allegiance भी बढ़ता है, आपका जो स्टेक होल्डर का ट्रस्ट आप पे बढ़ता है. ठीक है. इन्वेस्टर का भी ट्रस्ट बढ़ता है. तो ये सही है. What is the author's perspective on integration of ethics into corporate governance? Author ने क्या बोला? He or she feels that this should be a part of a long-term culture at any corporate governance. ठीक है. तो ethical considerations must always be secondary to financial imperatives. No, secondary तो नहीं था. While ethical governance may appear to constraint is restrain or reduce profit, it ultimately reinforces corporate sustainability. Yes, reinforces is strengthens. इसके बारे में बात हुई थी ना कि लग सकता है कि शॉर्ट टर्म में ऑब्वियसली आप एक कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हो, बट लॉन्ग टर्म में इट क्रिएट्स दैट साइकिल ऑफ कंटिन्यूस प्रॉफिटेबिलिटी व्हिच अल्टीमेटली इज गिव्स यू ह्यूज रिटर्न्स एज अ कंपनी. ठीक है. सो दिस इज व्हाट द ऑथर बिलीव्स. और देखते हैं, companies that prioritize ethics over profit inevitably is something that is bound to happen. ठीक है. Inevitably succumb is when you give way to, when you suffer. ठीक है. ये लाइन आपने देखा होगा, लेट्स से देयर इज अ फायर इंसिडेंट एंड अ लॉट ऑफ पीपल सक्कम्ड टू देयर इंजरीज, मतलब वो सर्वाइव नहीं कर पाते. ठीक है. दे फॉल प्रे टू देयर इंजरीज. सो क्या ऑथर का ऐसा मानना है कि जो कंपनीज एथिक्स को प्रायोरिटाइज करते ओवर प्रॉफिट, वो इनएविटेबली, मतलब कोई और रास्ता नहीं है, दे विल फॉल प्रे टू फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी? ऐसा तो नहीं है. ये तो नहीं बोला है ऑथर ने कभी भी. ठीक है. एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस आर इफेक्टिव only when they are used as tools for public relations. तो पूरा ही गलत है. इसके अगेंस्ट गए थे ना हम लोग कि सिर्फ इसको एज अ टूल यूज नहीं करना है, स्ट्रैटेजी यूज नहीं करना है, इंटेंट होना चाहिए. अच्छा. ठीक है. तो सही क्या है? दिस वन. ठीक है. So this was the passage for today, and I hope you found it to be interesting and insightful, and 3 associated questions for the passage. ठीक है. Thank you so much for tuning in, and I'll see you in the next one.